Assalamu alaikum dear students. Today we are going to cover crash course lecture 2 on ketone body metabolism, which is taking place in the liver of our body. In this lecture you will study ketone bodies. What are ketone bodies? Why and when our ketone bodies are formed? Ketone bodies in diabetes, ketone bodies in dieting and starvation, and you will study the quiz and some of the MCQs at the end of this lecture. If you carefully listen this or watch this lecture, you will be able to define some of the terminologies which are usually asked in the quiz or in the grand viva. Number one is what is ketosis, ketonemia, ketonuria, whether liver can use ketone bodies for energy production, and ketoacidosis. At the end you will find maple syrup urine disease and ketone bodies. So if you will carefully listen this lecture, you will be able to define all these terminologies or the questions. Let's start the lecture. Ketone bodies types, कितनी types की ketone bodies होती हैं? तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ketone bodies कहाँ पर produce होती हैं. Ketone bodies are produced in the liver. In fact, in circulation जो हम intake करते हैं diet, उसमें glucose शामिल है, which is taken up by the liver, and then the fatty acids, which is also taken up by the liver, some of the amino acids and proteins, which is also metabolism उनका liver के अंदर हो रहा है. If the glucose is deficient in the diet, or if the glucose cannot be utilized, for example, if there is no insulin, then fatty acid metabolism will take over for the energy production. Fatty acid जिसे अगर metabolize होगा liver के अंदर, तो ketone body synthesize होंगी. Mainly जो हमारी body के अंदर liver के अंदर ketone body synthesize हो रही हैं, वो है number 1 acetone, number 2 acetoacetate, number 3 beta hydroxybutyrate. So 3 different type of ketone bodies are synthesized in the liver as a result of fatty acid metabolism, not the glucose metabolism, not the amino acid or fatty acids. दोनों का जिस वक्त मेटाबॉलिज्म होगा एट द एंड कीटोन बॉडी सिंथेसाइज होंगी. बट इफ द ग्लूकोज इज टेकन ओवर, ग्लूकोज जो है वो टेक ओवर करेगा. इफ द ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट इन अ हाई कंसंट्रेशन इन द सर्कुलेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज मेन सोर्स जो एनर्जी का है हमारी बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज है. If the glucose is deficient, carbohydrates are deficient, or if the insulin is not working, then fatty acid metabolism or protein metabolism will take over, and they will produce as a result ketone bodies. There are 3 different type of ketone bodies: acetone, acetoacetate, beta hydroxybutyrate. अब एक क्वेश्चन ये आता है कि फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में 3 जो हमारे पास कीटोन बॉडीज बन रही हैं, इनमें क्या तीनों एसीटोन, एसिटोएसीटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एनर्जी रिलीज कर सकती हैं? द आंसर इज नो, बिकॉज एसीटोन इज अ वोलेटाइल कीटोन बॉडी जो कि नॉन एनर्जी रिलीजिंग है, वाइल एसिटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट जो है ये 2 ऐसी कीटोन बॉडीज हैं जो कि एनर्जी रिलीज कर सकती हैं, एंड दे आर यूटिलाइज्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो हम अभी आगे चल के देखेंगे. दिस इज द लिवर. एंड कीटोजेनेसिस कीटोन बॉडी किस तरह बन रही हैं? तो अभी हमने कहा है कि ग्लूकोज एंड फैटी एसिड्स along with the amino acids in the circulation taken up by the liver. अब इसमें ग्लूकोज जो है वो अपना रोल प्ले कीटोजेनेसिस, दैट इज कीटोन बॉडी सिंथेसिस के अंदर नहीं करेगा. फैटी एसिड और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म जो है या ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो है ये प्रोड्यूस करेंगे एसिटाइल कोए. डिफरेंट साइकिल्स के अंदर प्रोड्यूस करेंगे एसिटाइल को. If 2 moles of the acetyl CoA combines in the presence of a enzyme which is known as beta ketothiolase, इसकी presence में 2 moles of the acetyl CoA will form acetoacetyl CoA. Acetoacetyl CoA हमारे पास बनेगा. Acetoacetyl CoA another acetyl CoA को take up करेगा, और in the presence of an enzyme जो कि HMG CoA सिंथेज है, ये बनाएगा HMG CoA सिंथेज. HMG किस चीज की एब्रीविएशन है? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल CoA. So HMG CoA. So number 1 reaction, fatty acid, glucose and amino acids are taken up in the liver, and as a result of metabolism they will yield acetyl CoA. 2 moles of acetyl CoA will combine to produce acetoacetyl CoA in the presence of an enzyme which is known as beta ketothiolase. This acetoacetyl CoA along with another acetyl CoA in the presence of enzyme HMG CoA synthase
they will form because it is synthase, that is जो चीज बन रही है वो HMG को है। अगर आपको ये याद रह जाता है HMG को है तो इसके आगे सिंथेज लगा दें तो एंजाइम बन जाएगा। सो असीटोएसिटाइल कोए will take up another acetyl CoA and form HMG CoA। अब HMG CoA के ऊपर क्या होता है, एक एंजाइम है HMG CoA लाइएज। लाइएज का मतलब क्या है, देखें ये भी HMG CoA है, ये भी HMG CoA है, यहां पर सिंथेज है, ये बन रहा है। लाइएज मीन ये ब्रेकअप हो जाएगा। सो एक एंजाइम जो इसी के ऊपर है, ये दो एंजाइम तो याद रहेंगे। तीसरा बीटा कीटोथायोलेज है। बीटा कीटोथायोलेज की प्रेजेंस में एसिटाइल CoA बन रहा है, ये HMG CoA बन रहा है। HMG CoA के ऊपर लाइएज काम करेगा और ये ब्रेकअप होके असीटो एसीटेट देगा और दूसरा एसिटाइल CoA देगा। सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड as a result of breakdown of HMG CoA in the presence of liase. Now this acetoacetyl CoA जो है spontaneously decarboxylation करेगा। डिकार्बोक्सिलेशन से मुराद क्या है, असीटोएसिटाइल CoA के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सीट आउट हो जाएगी थ्रू लंग्स और स्पॉन्टेनियसली असीटोएसिटाइल CoA डिकार्बोक्सिलेशन के बाद बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। और अगर यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज काम करे तो प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन। सो इस पूरे साइकिल के अंदर आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी कीटोन बॉडीज हैं। नंबर 1 असीटोएसीटेट, नंबर 2 बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, नंबर 3 एसीटोन। ये साइकिल कहां से स्टार्ट हुआ, 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल CoA, असीटोएसिटाइल CoA, another acetyl CoA, HMG CoA, HMG CoA से असीटोएसीटेट और एसिटाइल CoA, ये एसिटाइल CoA दोबारा इसी पूल में चला जाएगा और असीटोएसीटेट जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट और एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द 3 एंटीबॉडीज। अब इनमें एनर्जी रिलीजिंग कौन सी थी, लास्ट मैंने भी आपको बताया लास्ट स्लाइड में, असीटोएसीटेट इज एनर्जी रिलीजिंग, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट इज एनर्जी रिलीजिंग। ये क्वेश्चन कि ये क्या लिवर खुद से असीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट एनर्जी रिलीज करने के लिए इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, ये एक और क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन असीटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट सर्कुलेशन में चली जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल असीटोएसीटेट यहां पर ब्लड सर्कुलेशन है, इसके अंदर असीटोएसीटेट ऐड हो जाएगी एंड देन बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट भी इसी सर्कुलेशन के अंदर एड अप हो जाएगी। यहां पर जाएगी तो ये रिमोट टिश्यूज जो मसल्स हैं और डिफरेंट अदर वहां पर ये यूटिलाइज होंगी टू प्रोड्यूस एनर्जी। नंबर 1 इट विल गो टू ब्रेन, 50 to 70% जो ब्रेन का एनर्जी फ्यूल है वो ब्रेन यूटिलाइज करता है थ्रू कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म। देन स्केलेटल मसल इसको टेकअप करेंगे, हार्ट इसको टेकअप करेगा। मेजर 3 ऑर्गन्स हैं स्केलेटल मसल्स, ब्रेन एंड हार्ट, जो कि असीटोएसीटेट बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को सर्कुलेशन में लिवर भेजेगा और वो उसको टेकअप करके एनर्जी रिलीज करेंगे। व्हाट अबाउट द एसीटोन, एसीटोन इज अ वोलाटाइल, वोलाटाइल है, हाईली वोलाटाइल है। ये क्या करेगा, इसको रिलीज कर दिया जाएगा एक्सीटेड थ्रू ब्रेथ, दैट इज लंग्स इन्वॉल्व होंगे और वोलाटाइल वहां से बिकॉज ऑफ वोलाटाइल होने की वजह से एसीटोन वहां से रिलीज हो जाएगा। सो इस स्लाइड के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसमें हमने ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड टेकन अप बाय द लिवर, एसिटाइल को इज प्रोड्यूस्ड, एसिटाइल को से असीटोएसिटाइल को, HMG को, असीटोएसीटेट, ब्रेकअप, स्पॉन्टेनियसली डिकार्बोक्सिलेशन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, एसीटोन, ये दो जो एनर्जी रिलीजिंग है ब्लड में चली जाएगी, वोलाटाइल होने की वजह से एसीटोन लंग्स इन्वॉल्व होंगे और इसको एक्सीट आउट कर देंगे। नाउ कीटोन बॉडीज रिएक्शंस में अगर हम और इसकी मोबिलाइजेशन में जाएं तो हम कहेंगे अब हमारे पास सर्कुलेशन में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट आ गए, जो हमने 3 टिश्यूज को भेजा, कहां पर, एक ब्रेन के अंदर, स्केलेटल टिश्यूज के अंदर और हार्ट के अंदर। अब बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के ऊपर एक एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, ये काम करेगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजिनेज और असीटोएसीटेट दे देगा। अब ये असीटोएसीटेट जो है इट विल कंबाइन विद अनदर सक्सिनाइल CoA, सक्सिनाइल CoA, इसका दरअसल सक्सिनाइल का CoA ये लेता है, असीटोएसीटेट CoA जो रेड पोर्शन है इट विल टेक, असीटोएसीटेट विल टेक अप दिस CoA और ये सक्सिनाइल CoA कहां से आ रहा है, TCA साइकिल से आ रहा है। सो acetoacetate in the presence of succinyl CoA from TCA it will yield in the presence of thiophrase, कौन सी चीज yield करेगा, acetoacetyl CoA। Now this acetoacetyl CoA is a very important compound which will break up into acetyl CoA and another acetyl CoA.
सो अब ये चीज याद रखें कि थायोफ्रेज जो है इट इज नॉट प्रेजेंट इन लिवर, जिसकी वजह से ये पूरा साइकिल लिवर के अंदर नहीं हो सकता. But this thiophrase is present in skeletal muscles, in brain and in heart where this cycle is taking place. So thiophrase absent है liver के अंदर, that's why liver cannot utilize these beta hydroxybutyrate or acetoacetate. Because thiophrase नहीं है तो वहां पर वो दूसरे साइकिल में सिंथेसाइज होके सर्कुलेशन में आ जाएगा और taken up by the liver, taken up by the brain, muscles and heart. अब अगर हम इसकी मोबिलाइजेशन की बात करें फैट्स की, तो हम कहते हैं हमारे पास स्टोर्ड फैट्स जो एडिपोज टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट हैं, स्टोर्ड फैट्स हैं. ये स्टोर्ड फैट्स ब्रेकअप होंगे फैटी एसिड्स में. फैटी एसिड इज टेकन अप बाय द लिवर. लिवर इसको मेटाबोलाइज करेगा, प्रोड्यूस करेगा कीटोन बॉडीज. कीटोन बॉडीज सर्कुलेशन में आ जाएंगे. नाउ क्वेश्चन ये है कि कीटोन बॉडीज, ये सारा साइकिल कब होगा? व्हेन द कार्बोहाइड्रेट स्टोर रिजर्व्स डेफिशिएंट हो जाएंगे. दैट इज या तो प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन है जब कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल नहीं है, और या फिर इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को टेक अप करके और मसल्स को, ब्रेन को, हार्ट को, डिफरेंट अदर टिश्यूज को प्रोवाइड नहीं कर सक रही. ये साइकिल ब्लॉक हुआ है. इधर द कार्बोहाइड्रेट इज डेफिशिएंट और इंसुलिन इज नॉट फन. तो ग्लूकोज नहीं है सर्कुलेशन के अंदर, ग्लूकोज नहीं आएगी. व्हेन द ग्लूकोज इज एब्सेंट और वेरी लो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, देन फैट स्टोर जो आपकी एडिपोज टिश्यूज की हैं, ये मेटाबोलाइज होकर फैटी एसिड्स देंगे. फैटी एसिड इज टेकन अप बाय द लिवर, ब्रेक डाउन होगा फैटी एसिड्स. फैटी एसिड इज टेकन अप बाय द लिवर. लिवर कीटोन बॉडीज बनाएंगे. कीटोन बॉडीज में से दो कीटोन बॉडी जो एसीटोन के अलावा बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट और एसीटोएसीटेट, ये क्या होगा? सर्कुलेशन में आ जाएगा. सर्कुलेशन के अंदर नॉर्मली जो हमारे पास प्रेजेंट है कीटोन बॉडीज, वो 1 मिलीग्राम पर डीएल ये कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होती है. बट इंक्रीज डिक्रीज एडिपोसाइट्स जो है ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में कीटोन बॉडीज इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है, डिपेंड्स अपॉन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. सो कीटोसिस क्या चीज है? कॉमनली एसोसिएटेड विद स्टार्वेशन. दैट इज व्हेन देयर इज नो कार्बोहाइड्रेट इज अवेलेबल. फिर बॉडी क्या करेगी? स्टोर्ड फैट्स और स्टोर्ड प्रोटीन से अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से एसिटाइल को बनाकर और कीटोन बॉडी जनरेट करेगी. तो स्टार्वेशन में एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस में, जिसे अगर ये साइकिल ब्लॉक हो जाता है, ग्लूकोज यूज नहीं हो सकता, तब भी स्टोर फैट्स जो हैं वो कीटोन बॉडीज बना के अल्टरनेट फ्यूल सोर्सिंग करेंगे. Thiophrase is absent in the liver. That's why liver is unable to utilize ketone bodies to yield energy. Clear? Now, acetone in diabetes diagnosis. This is something very important because diabetes जो है, इसमें जो patients हैं उनकी smell से, that is जो lungs volatile acetone excrete out करेंगे through breath, यहां पर आएगा, तो उसकी smell से हम बता सकते हैं कि acetone in breath कब आएगा? Spontaneous decarboxylation. हमने लास्ट में पढ़ा था स्पॉन्टेनियसली डिकार्बोक्सिलेशन होगी, एसीटोएसीटेट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन व्हिच इज वोलेटाइल एंड इन एक्सीटेड थ्रू द लंग्स. जिसे अगर आएगा तो एसीटोन की स्पेसिफिक स्मेल आएगी. इसको हम फॉल्स अल्कोहल स्मेल भी कह सकते हैं. यानी कि डायबिटिक्स की मुंह से अगर वो डायबिटीज कंट्रोल नहीं है या प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन है तो एसीटोन रिलीज होगा. दूसरा, एसीटोन इन ब्रेथ जो है, इसी की बेस पर हम ये बता सकते हैं कि हैज बीन यूज्ड एज अ रूड मेथड ऑफ डायग्नोसिस. किस चीज का डायग्नोसिस हो सकता है? इंडिविजुअल विद अनट्रीटेड डायबिटीज मेलाइटिस. अगर उसका अनट्रीटेड डायबिटीज मेलाइटिस है या उसका पुअर कंट्रोल है तो उसकी सांस के अंदर से एसीटोन की स्मेल आएगी. कीटोन बॉडीज यूटिलाइजेशन. सो कीटोन बॉडीज हमारी बॉडी के अंदर हैं, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटारेट एंड एसीटोएसीटेट. ये दो कीटोन बॉडीज हैं जो कि लिवर ने सिंथेसाइज की थी और वो सर्कुलेशन में गई थी. तो ये दो कीटोन बॉडीज जो हैं, they are taken up by the brain, by the skeletal muscles and by the heart. So they will utilize these ketone bodies to energy produce. Important source of energy in peripheral tissues कौन कौन से? Skeletal muscles, cardiac muscles and renal cortex. यहाँ पर ये भी renal cortex भी इसको यूटिलाइज करेगी एनर्जी रीड करने के लिए. Prolonged starvation जो है major source of fuel in brain and other CNS part. जिस वक्त क्या होगा? Prolonged starvation होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं अवेलेबल, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो बॉडी क्या करेगी? जो स्टोर्ड फैट्स हैं एब्डोमिनल टिश्यूज में, मुख्तलिफ थाइज के ऊपर, एब्डोमिनल टिश्यूज के ऊपर जो स्टोर्ड फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करके लिवर को भेजेगा. वहां से कीटोन बॉडीज बनेगी, कीटोन बॉडी सर्कुलेशन में आएगी और अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर बॉडी डिपेंड करना शुरू हो जाएगी, स्पेसिफिकली सीएनएस पार्ट. कीटोन बॉडीज कैन मीट 50 to 70% ऑफ द ब्रेन एनर्जी डिमांड्स. सो अब क्वेश्चन ये है
कि ब्रेन सबसे ज्यादा कीटोन बॉडीज पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर ग्लूकोज डाउन होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा या डायबिटीज होगी, ग्लूकोज कैन नॉट बी टेकन अप, इंसुलिन डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा, ब्रेन जो है उसको सर्वाइव रखना है। वो अपनी सर्वाइवल के लिए 50 to 70% एनर्जी कीटोन बॉडी से लेकर अपना काम जारी रखेगा। सो दिस इज द सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास कीटोन बॉडीज की कितनी है, 1 मिलीग्राम पर डीएल है। सिंथेसिस रेट अगर इंक्रीज हो जाएगा, अब क्वेश्चन ये है कि सिंथेसिस रेट किस चीज का, कीटोन बॉडीज, इन दो कीटोन बॉडीज का। अगर सिंथेसिस रेट इंक्रीज होता है, कब होगा, प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन के अंदर या डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कीटोनीमिया काज होगा। व्हाई? बिकॉज सर्कुलेशन के अंदर 1 मिलीग्राम पर डीएल से कीटोन बॉडीज का रेट इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। फिर अगर यहां पर सिर्फ रहता है देन फाइन, फर्दर इंक्रीज होगा तो यूरिन के अंदर अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी कीटोन बॉडीज की। सो जिस अगर क्रोनिक डायबिटीज मेलाइटस होता है और स्पेसिफिकली अनकंट्रोल्ड है, तो उनके यूरिन के अंदर, पेशेंट्स डायबिटिक्स के यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज की अपीयरेंस आना शुरू हो जाएगी। दिस कंडीशन इज नोन एज कीटोनूरिया। कीटोनूरिया। और इन दोनों को अगर आप मिला दें, कीटोनीमिया एंड कीटोनूरिया, तो हम कहेंगे कि ये दो कॉन्सेंट्रेशंस ऐसी हैं जिससे कि इंक्रीज लेवल ऑफ कीटोन बॉडी सिंथेसिस हो रहा है, देन द यूटिलाइजेशन, दिस कंडीशन इज नोन एज कीटोसिस। स्टार्वेशन एंड कीटोन बॉडीज। फैटी एसिड इंक्रीज डिग्रेडेशन। स्टार्वेशन में क्या होगा, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है। फैटी एसिड इंक्रीज डिग्रेडेशन, आपका जितना फैटी एसिड स्टोर्स हैं एडिपोज टिश्यूज के अंदर, फैटी एसिड जनरेट करेंगे, फैटी एसिड इंक्रीज होगा, दिस फैटी एसिड इज टेकन अप बाय द लिवर एंड ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए लिवर के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। इसका कुछ पार्ट जो है वो तो टीसीए साइकिल को भेज दिया जाएगा, यानी कि एसिटाइल कोए लिवर के अंदर एक्यूमुलेट हुआ, एसिटाइल को एक कुछ साइकिल हमने टीसीए, लेकिन टीसीए हाल्ट हो जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि क्योंकि टीसीए के अंदर ऑक्सैलोएसीटेट जो है, ऑक्सैलोएसीटेट, फ्यूमरेट, ये आते हैं ना साइकिल्स के अंदर, तो ऑक्सैलोएसीटेट डेफिशिएंसी होगी। क्यों? बिकॉज ऑक्सैलोएसीटेट ऑफ द टीसीए इंपेयर हो जाएगा, वो ग्लूकोज सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करेगा। सो ये तो साइकिल हो गया ब्लॉक। अब क्या होगा, एसिटाइल को लिवर के अंदर फर्दर इंक्रीज होता रहेगा, तो उस वक्त एसिटाइल को यूटिलाइज होगा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज, यानी कि नॉर्मली जिस वक्त फैटी, क्यों ये सब काम क्यों हो रहा है, बिकॉज स्टार्वेशन, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं, कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है, फैटी एसिड इंक्रीज होगा, लाइपोलाइसिस इंक्रीज हुआ, टेकन अप बाय द लिवर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स एसिटाइल को इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन होगी, टीसीए ब्लॉक हो जाएगा। एसिटाइल को फर्दर प्रोड्यूस करेंगे कीटोन बॉडीज की कॉन्सेंट्रेशन 1 से 2, 3, 4 मिलीग्राम पर डीएल तक ब्लड के अंदर चली जाएगी। फिर क्या होगा, कीटोन बॉडीज यूटिलाइज होना शुरू हो जाएंगी, या पहले सबसे पहले आपकी सर्कुलेशन में इंक्रीज होगा, जिसको हमने कीटोनीमिया कहा था, उसके बाद ये यूरिन के अंदर अपीयरेंस होगी, जिसको हमने कीटोनूरिया कहा था, विच विल लीड टू वेट लॉस। सो वेट लॉस के लिए भी जो पेशेंट्स को कहा जाता है कि आप कीटो डाइट इस्तेमाल करें। कीटो डाइट से मुराद क्या है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट को नील कर दें, आप रोटी को नील कर दें, आप चावल को नील कर दें, आप शुगर को नील कर दें, ग्लूकोज को नील कर दें, ऑल द कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट्स को आप नील कर देंगी, तो क्या होगा, आप बीन्स लेना शुरू कर दें, आप एग जोक को छोड़ दें, एग वाइट लेना शुरू कर दें, आप प्रोटीन डाइट लेना शुरू कर दें, आप वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दें, उसमें क्या होगा, आपके स्टोर्ड फैट्स बर्न होकर, दैट इज उनकी डिग्रेडेशन होकर एसिटाइल कोए बनाएंगे, एसिटाइल कोए कीटोन बॉडी बनाएगी, आपको एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो लाइपोलाइसिस से आएगी, लिपिड से आएगी, एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर्ड फैट से आएगी, कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंड करना छोड़ दें। सो वेट लॉस के लिए कहा जाता है कि कीटो डाइट इस्तेमाल करें, सो दैट मोर कीटोन बॉडीज आर प्रोड्यूस्ड एंड बॉडी उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू हो जाती है। नॉन पैथोजेनिक कीटोसिस क्या चीज है, एक क्वेश्चन आता है वाइवा के अंदर, काज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ हाई फैट डाइट, इंसुलिन इनहिबिट्स कीटोन बॉडी सिंथेसिस, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स कीटोजेनेसिस, एमसीक्यू का क्वेश्चन है। Now it's time for the quiz. Please watch the MCQs carefully.
Thank you, dear students. If you like this lecture and if you want to listen more lectures on the lipid metabolism crash courses, please subscribe my channel and hit the bell icon button so that you can have the latest notifications. Thank you.